آج ہم بات کریں گے ایک ایسی فلم کی جس میں ایک نوجوان پورے کرپٹ نظام کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ فلم کا نام ہے ریپبلک۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑی جھیل سے۔ اس جھیل کا نام ہے ٹلرو لیک۔ کئی سال پہلے یہ جھیل علاقے کے لوگوں کے لیے بہت اہم تھی۔ لوگ اس جھیل سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کسان بھی اس جھیل پر منحصر تھے، لیکن وقت کے ساتھ اس جھیل پر غیر قانونی مچھلی کے فارم بننا شروع ہو گئے۔ ان فارمز کی وجہ سے جھیل کا پانی آلودہ ہونے لگا، اور اس سارے کاروبار کے پیچھے ایک طاقتور سیاست دان کا ہاتھ تھا۔ اس سیاست دان کا نام تھا وشاکھا وانی۔ اب کہانی آتی ہے ایک نوجوان کی طرف۔ اس نوجوان کا نام تھا ابھی رام۔ ابھی رام بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ غلط چیز کو غلط کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا تھا۔ اسے کرپشن سے سخت نفرت تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا گھر تھا۔ ابھی رام کا باپ ایک سرکاری افسر تھا، اس کا نام تھا دسرتھ۔ دسرتھ ایک وقت میں بہت ایماندار افسر تھا، لیکن اب وہ بھی کرپٹ نظام کا حصہ بن چکا تھا۔ ابھی رام اپنے باپ کی کرپشن کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، اسی وجہ سے دونوں کے درمیان اکثر اختلاف رہتا تھا۔ پھر ایک دن ابھی رام کو امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک شاندار مستقبل بنانے کا موقع ہوتا ہے، لیکن اسی دوران اسے اپنے ملک کے نظام کی حقیقت زیادہ قریب سے نظر آتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ملک میں رہ کر نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور اسی مقصد کے لیے وہ سول سروس کا امتحان دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکی اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے میرا۔ میرا کا بھائی ایک ڈاکٹر اور پروفیسر ہوتا ہے، اس کا نام ہے ورون۔ ورون اچانک لاپتہ ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے ابھی رام تک پہنچتی ہے۔ دونوں مل کر ورون کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پولیس بھی ان کی کوئی خاص مدد نہیں کرتی۔ ابھی رام کو اس معاملے میں ایک اور شخص ملتا ہے، اس کا نام ہے مانی۔ مانی ایک آٹو ڈرائیور ہوتا ہے، وہ بھی علاقے کے لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن مانی کے سامنے بھی ایک طاقتور سیاسی نظام کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران وشاکھا وانی اپنی سیاسی طاقت بہت زیادہ بڑھا لیتی ہے۔ وہ انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے کو ریاست کا وزیر اعلیٰ بنوا دیتی ہے۔ اب وانی کے پاس سیاست بھی ہے، اور کاروبار بھی، لیکن ابھی رام اس طاقت سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ابھی رام سول سروس کا امتحان پاس کر لیتا ہے۔ اب اسے دہلی میں انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے۔ راستے میں ٹرین کے اندر اسے اپنے بچپن کا ایک تکلیف دہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مانی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کام ایک خطرناک غنڈے کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ اس غنڈے کا نام تھا گونا۔ ابھی رام یہ سب دیکھ کر اندر سے ہل جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا انٹرویو دینے جاتا ہے۔ انٹرویو میں ابھی رام سیدھے اور سخت سوالات کرتا ہے۔ وہ پورے نظام کی خامیوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب اسے نوکری نہیں ملے گی، لیکن چند دن بعد ایک حیران کن خبر آتی ہے۔ ابھی رام سول سروس کے امتحان میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور اسے ایک خاص اختیار کے ساتھ ضلع کا افسر مقرر کیا جاتا ہے۔ اب ابھی رام کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ کرپشن کے خلاف عملی قدم اٹھائے گا۔ اس کا پہلا ہدف گونا ہوتا ہے۔ ابھی رام گونا کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور آخرکار وہ گونا تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں اسے ایک اور حیران کن چیز نظر آتی ہے۔ میرا شدید زخمی حالت میں ملتی ہے۔ ابھی رام فوراً اسے ہسپتال پہنچاتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی ورون کے بارے میں سچ جاننے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ابھی رام دوبارہ ورون کے معاملے کی تحقیق شروع کرتا ہے، اور اسے ورون کی تحقیق کے بارے میں ایک اہم معلومات ملتی ہے۔
वरुण ने टलरू झील के पानी और मछलियों पर तहकीक की थी। इस तहकीक से एक खतरनाक हकीकत सामने आती है। झील का आलूदा पानी और आलूदा मछलियां लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही थीं। वरुण की अपनी बीवी भी एक खतरनाक बीमारी का शिकार होकर मर जाती है। वरुण को शक होता है कि इस बीमारी का ताल्लुक झील की आलूदा मछलियों से है। वो मज़ीद तहकीक करता है और उसे पता चलता है कि झील में मौजूद गैर कानूनी मछली के फार्म इस आलूदगी की बड़ी वजह हैं और इन फार्मस का ताल्लुक वशाखा वानी के कारोबार से होता है। अभिराम ये सब जानकर खामोश नहीं रहता। वो फौरन कार्रवाई शुरू कर देता है। वो अपने बाप दशरथ को भी मुअत्तल कर देता है, क्योंकि दशरथ ने झील के बारे में गलत रिपोर्टें मंजूर की थीं। अभिराम वशाखा वानी के सामने भी खड़ा हो जाता है। वो इससे कहता है कि झील पर मौजूद गैर कानूनी फॉर्म खत्म किए जाएं और झील को दोबारा साफ किया जाए। लेकिन वानी भी आम सियासतदान नहीं होती। वो अभिराम को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है। वानी बताती है कि वो भी कभी निज़ाम को बदलना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में उसे बार बार धोखा मिला। उसने अपने करीबी लोगों को खोया और आखिरकार इसने ये मान लिया कि निज़ाम को बदला नहीं जा सकता। इसलिए उसने खुद उसी निज़ाम का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। अब वानी इलाके के माही गैरों को अपने साथ मिला लेती है। वो इन्हें यकीन दिलाती है कि इसके कारोबार से उन सबको फ़ायदा होगा। इस तरह लोग अभिराम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अभिराम मसला हल करने के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाता है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में कई लोग जख्मी और हलाक हो जाते हैं। इस वाक़ये के बाद अभिराम के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसे इसके ओहदे से मुअत्तल कर दिया जाता है। अभिराम को पहली बार महसूस होता है कि पूरा निज़ाम इसके खिलाफ हो चुका है। उसी दौरान इसके बाप दशरथ को भी लोगों की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ता है। अभिराम अपने बाप को बचाता है और फिर उसे अपने बाप के माजी की हकीकत मालूम होती है। दशरथ हमेशा से करप्ट नहीं था। वो कभी बहुत ईमानदार अफसर था। वो जहाँ भी जाता ईमानदारी से काम करता, लेकिन इसकी ईमानदारी की वजह से इसके बार बार तबादले किए गए। इसके खानदान को भी इस निज़ाम की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार दशरथ टूट गया। इसने सोचा कि अगर वो निज़ाम को बदल नहीं सकता तो कम अज़ कम उसी निज़ाम के साथ चलना सीख ले, और यही वजह थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता करप्शन का हिस्सा बन गया। ये हकीकत जानने के बाद अभिराम को अपने बाप की असल तकलीफ समझ आ जाती है। अब बाप और बेटा एक साथ खड़े हो जाते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि वो अदालत में सच के तमाम सबूत पेश करेंगे। वो झील की आलूदगी के सबूत जमा करते हैं और सियासी करप्शन के सबूत भी अदालत के सामने रखते हैं। केस एक ईमानदार जज के सामने पहुंचता है। जज का नाम है जस्टिस नरसिम्हम। अदालत में सियासी दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जज दबाव में आने से इनकार कर देता है। अभिराम अदालत में एक ताकतवर बात कहता है। वो बताता है कि जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है जब इदारे अवाम के लिए काम करें और जब ताकतवर लोग कानून से ऊपर ना हों। आखिरकार अदालत एक बड़ा फैसला सुनाती है। वशाखा वानी के खिलाफ कार्रवाई होती है। दशरथ और दूसरे जिम्मेदार अफसर भी अपने ओहदों से हटा दिए जाते हैं और झील पर होने वाली गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म दिया जाता है। अभिराम को लगता है कि आखिरकार इसकी मेहनत कामयाब हो गई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अभिराम झील की तरफ जाता है और वहां एक हैरानकुन मंजर देखता है। झील पर दोबारा तामीर शुरू हो चुकी होती है। अभिराम लोगों से पूछता है कि जब अदालत ने ये सब रोक दिया है तो फिर दोबारा तामीर क्यों शुरू की गई है। लोग उसे जवाब देते हैं कि इतने साल तक एक गिरोह ने हुकूमत की है, अब हमारी बारी है। अभिराम को समझ आ जाता है कि असल बीमारी सिर्फ एक सियासतदान नहीं है।
असल बीमारी ताकत की ख्वाहिश है। जब एक शख्स ताकत हासिल करता है तो वो भी उसी रास्ते पर चलने लगता है जिस रास्ते पर पहले वाले लोग चल रहे थे। अभिराम लोगों को समझाने की कोशिश करता है। इसे मानी के वालिद की हिमायत भी मिलती है, लेकिन हालात दोबारा बदल जाते हैं। आखिरकार मानी का वालिद भी उसी ताकत के खेल का हिस्सा बन जाता है। वो अपने लोगों के साथ मिलकर झील पर कब्जा करना चाहता है और एक दिन अभिराम को एक सुनसान जगह पर बुलाया जाता है। वहाँ इसे धोखा मिलता है। मानी का वालिद अभिराम से माफी मांगता है, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटता और अभिराम की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। अभिराम ने पूरी जिंदगी जिस निज़ाम को बदलने की कोशिश की थी, आखिरकार वही ताकत का खेल इसकी जान ले लेता है। अभिराम की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग इसके लिए एहतजाज करते हैं और इसकी याद में शमे रोशन करते हैं। मेरा भी इस एहतजाज में शामिल होती है। दूसरी तरफ वशाखा वानी को भी अभिराम की मौत का शदीद सदमा पहुंचता है। इसे एहसास होता है कि अभिराम वाकई निज़ाम को बदलना चाहता था, लेकिन वो भी उसी सियासी चक्कर की एक शिकार बन चुकी थी। आखिरकार वानी भी अपनी जिंदगी ख़त्म कर लेती है। फिल्म का इख्तिताम बहुत उदास अंदाज में होता है। हमें इन ईमानदार अफसरान की याद दिलाई जाती है जिन्होंने मुआशरे के लिए सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर अदा की। और यहाँ फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या सिर्फ एक ईमानदार इंसान पूरे निज़ाम को बदल सकता है या फिर पूरे मुआशरे को बदलने की ज़रूरत होती है। रिपब्लिक हमें ये बताती है कि करप्शन सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं है, ये पूरे निज़ाम का मसला बन सकती है। और जब ताकत अवाम की खिदमत के बजाय ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने लगे तो जमहूरियत कमज़ोर हो जाती है। अभिराम की कहानी शायद एक शख्स की कहानी है, लेकिन इसका सवाल पूरे मुआशरे से है। अगर ईमानदार लोग खामोश हो जाएं, तो फिर निज़ाम को बदलने के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? यही सवाल फिल्म रिपब्लिक अपने इख्तिताम पर हमारे सामने छोड़ जाती है।